Hello students, today we learn about rainwater harvesting. आज हम वर्षा जल संग्रहण, कैसे हम वर्षा जल को संरक्षित करते थे प्राचीन काल में और कैसे हम आज उसको कर रहे हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, इस संबंध में अध्ययन करना चाहेंगे। Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose project, water harvesting system was a viable alternate. जल के मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय उपयोग को देखते हुए ऐसा कह सकते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ वाइबल अल्टरनेटिव, एक इसका प्रमुख अल्टरनेट है, बोथ सोशियो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। इन एंसेंट इंडिया along with the sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. People had a depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater. लोगों ने रेन वाटर को संरक्षित करने के बहुत से तकनीकें तैयार की थी। रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर इज कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड्स। नदी का जल, बाढ़ का पानी, इन सबको इकट्ठा करके वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इन हिल, पहाड़ी क्षेत्रों में, एंड माउंटेन्स रीजन्स, पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल लाइक द गुल्स एंड कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर। पश्चिमी हिमालय में गुल या कुल के द्वारा वो खेती करता था। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पर्टिकुलरली इन राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण प्रसिद्ध था। इन द फ्लड वाटर प्लेन्स ऑफ बंगाल, पीपल डेवलप्ड inundation canals to irrigate their fields. In arid and semi-arid regions, agriculture fields were converted into rain-fed storage structure that allowed the water to stand and moisture the soil, like the khadins in Jaisalmer and johars in other part of Rajasthan. In semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Falodi and Baimar, almost all the houses traditionally had underground tank or takas for storing drinking water. यानी बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर आदि स्थानों पर एक टैंक अंडरग्राउंड बनाया जाता था घरों में, जिसे टांका के नाम से जाना जाता है, जो पीने के पानी के जल संग्रहण के लिए उपयोग होता था। The rainwater can be stored in the takas
till the next rainfall में इन टाका जो जिसको कहा जाता था उसमें अगली वर्षा तक जल को संग्रहित करके रखा जाता था जो पीने के काम आता था। The next rainfall making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up, particularly in the summer. Rainwater or parlor pani is commonly preferred to in these parts is considered to persist from the natural water. Rooftop rainwater harvesting is the most common practice in Shillong, Meghalaya also. Today, in many parts of rural and urban India, rooftop rainwater harvesting is being successfully adopted to store and conserve water. In Ganthur, a remote backward village in Mysore, Karnataka, villagers have installed in their households rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. इन स्थानों पर वर्षा जल उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है जहां वे वर्षा जल को संरक्षित करते हैं। Rooftop harvesting water common across the towns and villages of the Thar. Rainwaters that falls on the sloping roofs of house is taken through a pipe into as underground taka triangular holes in the ground built in the main house or the country ward. In Tamil Nadu is the first and the only state. तमिलनाडु भारत का पहला और अकेला राज्य है which has made roof long top rainwater harvesting structure compulsory, जिसने अपने यहाँ वर्षा जल संग्रहण सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य के में जो भी घर बनते हैं। देयर आर लीगल प्रोविजन टू पनिश द डिफॉल्टर्स, वहाँ कानून है कि जो इस नियम को नहीं मानेगा अर्थात वर्षा जल संग्रहण सिस्टम को नहीं बनाएगा वो उसे सजा दी जाएगी। ऐसे ही कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो इरिगेशन के अनेक सिस्टम पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी दिखाई पड़ते हैं। इनमें जैसे बम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बांस द्वारा जल सिंचाई की व्यवस्था। इन मेघालय a 200-year-old system of tapping system and spring wake by using bamboo pipes is prevalent. मेघालय में आज भी बैम्बू पाइप यानी बांस की नली के द्वारा सिंचाई साधन की व्यवस्था दिखाई देती है। About 18-20 liters of water enters the bamboo pipe system, gets transported over hundreds of meters and finally reduced to 20-80 drops per minute at the site of the plant, जो पेड़ों की जड़ों के या पेड़ों के बगल गिरता है। प्रति मिनट 20 से 80 बूंद पानी।
ये एक इरिगेशन सिस्टम है जो मेघालय में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार हम सब ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है, कहाँ कहाँ पर प्रमुख रूप से ये व्यवस्था है, कैसे हमारी प्राचीन काल में थी, आज किस प्रकार से है, इससे संबंध में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। कल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के और शॉर्ट आंसर के, लॉन्ग आंसर के आपको सेंड करेंगे। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन विद आंसर होंगे, शेष वो आपको बुक इस पाठ के आधार पर उनके क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। थैंक यू।